Hello, students. So, today we are going to deal with the topic named Directive Principles of State Policy. I'll try to cover as much as possible so that you can attend all the questions which are going to come in your this UPPCS prelims examination going to be held on 14th May 2023. So my name is Bal Mukund and I am welcoming you all over the platform of Pariksha Idea. Now let's begin. So today's topic is directive principles of state policy. So what are directive principles of state policy? So these are basically directives which are given by our four constitution founders. They what they wanted our Indian society to be. Okay, तो बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, इन्होंने क्या सोचा था कि इंडियन सोसाइटी कैसी होगी, तो एक टाइप का डायरेक्टिव था. दिस वाज अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव जो कि गवर्नमेंट्स को लॉ के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी. मींस सपोज दैट इफ अ गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक अ लॉ, then they have to consider all these principles which has been this given in our directive principles. Okay, so let's begin. The directive principles of state policy are mentioned in Part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to 51. Again, I am repeating this class will be totally fact-based class. You have to rectify everything, whatever I am telling here or whatever things which are being showing here. You have to learn all these things, because UPSC in prelims examination they are not going to ask any conceptual question. The questions will be straightforward and fact based. Okay, so if we talk about this directive principles, तो ये 36 to 51, आर्टिकल 36 टू 51 का जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज कवरिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अगर क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट, तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द constitution of the Indian constitution. Now the idea of directive principles of the state policy is borrowed from Irish constitution. आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या किया है, बोरो किया है. तो वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. नाउ अगेन आर्टिकल 37, एज वी नो दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल contains article 36 to 51. So 37 deals with the application of the principle contained in the in this part. In which part? Part 4. You have to learn all those articles which are related to the directive principles, because the questions which come in UPSC prelims examination, that straightforward they ask about the article, that this article says that what. So you have to learn all these articles at least which I am telling you here. Okay, so the article important one, the directive principles are non-justiciable. They are not justiciable, means as I told you earlier, they are not enforceable by any court. They are mere a what, directive. So they are non-justiciable. Again, the constitution article 37 itself says that 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country. किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की गवर्नेंस के लिए ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये फंडामेंटल हैं. ठीक है, ये होने ही चाहिए. ठीक, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि ये जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको वो जब भी कोई भी लॉ अगर बना रहे हैं, whenever they are making any law, they have to incorporate all those principles which are defined here in the part 4 of the constitution. Okay,
So what actually we the our political leaders want to make a society which we call as a welfare state. Okay, so for that welfare state we have to follow the directive principles. So they what they means here, they means this directive principles. The directive principles embody the concept of a welfare state. एक welfare state की बात करते हैं, ठीक है. Now this was 37. Again in 38, article 38 says that state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. Now again 39A, 39A again an important article. This, why this article is important, because this was added by the 42nd Constitutional Amendment Act. So Article 39A added by the 42nd Amendment provides for the equal justice and free legal aid to the poor. तो यूपीपीसीएस में सीधे सीधे पूछ देगा कि which article provides for equal justice and free legal aid to the poor. So the answer will be Article 39A. या फिर सीधे पूछ देगा आर्टिकल 39A कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था, तो that was by the 42nd Constitutional Amendment Act. ठीक, बढ़िया. नाउ अगेन हमें आर्टिकल्स पर ही फोकस करना है और उन्हीं को लर्न करना है. सो 39A तक अपन ने कर लिया. अब लेट्स सी आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 से इज दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत स्टेट शाल, मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो ऐसी लॉज को बनाना चाहिए जिसकी वजह से विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हो सके. ठीक, अगेन इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल, दिस वाज आर्टिकल 40, दिस इज 41. 41 क्या कहता है कि राइट टू वर्क, education and public assistance in certain cases. So again this is again a question, what ki which article provides right to work? So it's article 41 under directive principles. Now article 43A, participation of workers in management of industries, promotion of cooperative societies, article 43B, most important. This one is also important कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से आर्टिकल से है, तो 43B. यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था ये. कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड टू 43B. यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर आर्टिकल 44 प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ठीक है. नाउ प्रोविजन ऑफ चाइल्डहुड केयर and education to children below the age of 6 to below the age of 6 year, this was under article 45. ठीक. Similarly, promotion of educational and economic interests of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker section, this is under article 46. So these are direct questions, like they will ask that which article provides for the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes and other weaker section. So the article 46. So article at least if you are preparing this chapter directive principles, so you have to learn from article 37 to article 51. If you learn all these, I say, is from my side, I recommend you to learn. Okay, if you learn all the articles from article 37 to article 51, you are not going to what you say, you will be able to solve all the questions which are going to come in UPSC prelims examination. So for that reason you have to learn 37 to 51. But remember one thing, that this fundamental right starts from directive principles starts from 36 to 51.
तो 36 is not that much important, but 37 to 51 is very important. Okay, it is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living to improve public health. This is Article 47. Very good. Organization of agriculture and animal husbandry, Article 48. एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, पशुपालन और कृषि के लिए. Now again, Article 48 provides for protection and improvement and safeguarding of forest and wildlife. Article 48, suppose that we see in newspaper environment related news that there are environment protection law and pollution control laws which are for controlling the population in Delhi. So these all laws are basically getting their root from these directive principles, because states DPSP, because states have to incorporate these ideas in making a law. ठीक है. Again, if you talk about Article 49, so what 49 says, that 49 provides for protection of monuments and places and objects of national importance. ठीक है. सो आर्टिकल 49 क्या करता है कि ये स्टेट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टेट को चाहिए कि वो मॉन्यूमेंट, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि जैसे मान लीजिए कि अपना ताजमहल है, तो स्टेट को ऐसी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखनी चाहिए जिससे कि इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स का क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके. ठीक है. अब जैसे कोई पहुंचा वहां पर दिल बना के लिख दिया सीता रमेश ताजमहल पे ही लाल रंग से, तो अब ये अगर कोई लिख दिया तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि इनको 4 लाठी भी मारे जो लिख रहा है और उनसे फाइन भी वसूले. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है. ये नहीं लिखना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये नहीं हमें लिखना है. लेकिन ये लिखने से रोकने के लिए जो नियम बनाए जाएं, वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा स्टेट. तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे तो वहां पर ये फिर से आएगा. ठीक है. तो मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, स्टेट कराएगा. ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डीपीएसपी के आर्टिकल किसमें लिखा है, 49 में. ठीक. अगेन दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस इज आर्टिकल 50. तो एटलीस्ट कुछ याद रहे ना रहे, 40 याद रहे कि 40 अच्छा विलेज पंचायत, 50 मतलब सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, 44 इज योर यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये तो 3 तो पक्का ही याद रखना. मतलब ये अगर नहीं याद है तो ये आत्महत्या करने जैसी सिचुएशन है. ठीक, कि फिर बैग बोरिया बांधिए और घर जाइए, कम से कम इतना तो याद रखिए. 40 और 50 और 44 भी, 44 भी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट ही है. नाउ अगेन promotion of for this promotion of international peace and security, आर्टिकल 51. ठीक है, कि स्टेट को ऐसी एक्टिविटीज हमेशा करती रहनी चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे. ठीक है. तो ये हमारा 37 से 51 तक का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. ठीक है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे और उन्हें आप लोग इस वीडियो क्या इन आर्टिकल्स को ही अगर आप कायदे से लर्न कर ले रहे हैं तो डीपीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक. डीपीएसपी में क्या है कि गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट बनाना चाह रही है. ठीक है. वेलफेयर स्टेट मतलब ये होता है जहां पर कि जितने भी लोग रह रहे हैं सबका सोशल इकोनॉमिकल दोनों प्रकार से क्या हो, प्रोग्रेस हो. ठीक है. तो ये हमारा है क्या, ये हमारा डीपीएसपी है. नाउ वी आर टेकिंग सम क्वेश्चन. अच्छा, here is the what is the difference between fundamental rights and directive principles. Since we have not covered fundamental rights yet, but simply फिर भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है. कि तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल. जस्टिसिएबल मींस क्या, अगर आपकी फंडामेंटल राइट का हरण हो रहा है, ठीक है,
तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपको इंटरटेन करेगा। ठीक, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो आपकी फंडामेंटल राइट्स का हरण, है ना, होने से बचाए। बट दिस थिंग डज नॉट belongs to case of directive principles. Suppose that if any of the directive principles are being violated, then a person cannot go to the court so that the court will so that the court can provide them this legal help, because they are not justiciable. ठीक है, but here fundamental rights are justiciable. Suppose that if anybody, even the government, is encroaching upon your fundamental right, then you can go to the court, and it is the duty of the court to provide you the remedy. Okay, but this is not in case of what? Directive principles. You cannot go to the court for enforcement of directive principles. ठीक है, तो they are the fundamental rights are justiciable, they are legally enforceable by the courts in case of their violation. They are, now if you talk about directive principles, these are non justiciable, they are not legally enforceable by the courts. ठीक, they are fundamental rights are negative in nature. अब what is negative in nature means, when we will take about this fundamental right, मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट आप उठा के पढ़ेंगे तो वहां पर सीधे आता है ये लिखा हुआ कि द स्टेट शैल नॉट, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, तो दिस इज अ निगेटिव टर्म, शैल नॉट। ठीक है, और ये जो है ये है पॉजिटिव कि स्टेट शैल, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव टर्म हो गया। ठीक, जब आप कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो स्टार्ट होगा कि द स्टेट शैल वर्क इन फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। बट जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट होता है कि द स्टेट शैल नॉट। सो दीज आर निगेटिव इन नेचर एंड द डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन नेचर। ठीक, these have legal sanctions, means backed by the court. They have moral and political sanctions. ये morally कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे, यहां पर उसके पीछे से लॉ है, यहां पर ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन। पॉलिटिकल रैली में वादे कर देना, तो वादे, अगर आप कल को नेता बनना चाहते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रट के चले जाइए और भाषण में जाकर के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बोलिए। ठीक है, वही होता है आपका। नाउ अगेन they aim at establishing political democracy, they aim at establishing social and economic democracy. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या एम करती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स एम at establishing political democracy, whereas the directive principles aim at establishing social and economical democracy. ये याद रखना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किससे आती है, फंडामेंटल राइट से। सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी किससे आती है, वो आती है डीपीएसपी से। ठीक है, promotion, this fundamental rights promotes welfare of the individual. ठीक है, अब किसी भी पर्सन की अगर फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया जा रहा है या उसकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दीज आर नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल, वो सोसाइटी की बात कर रहा है पूरे। ठीक है, कि विच टाइप ऑफ और विच काइंड ऑफ सोसाइटी इंडिया विल बिकम। ओके, so this is not in this promotes community welfare. So the fundamental rights is for the welfare of individual, whereas the DPSP is for community welfare. ठीक, they are automatically enforced. आप पैदा हुए और आपको आपके फंडामेंटल राइट्स मिल गए। ठीक है ना, राइट टू लाइफ। ठीक, मुझे ये कमेंट में बताना है आप लोगों को कि राइट टू वोट
ये कौन सी राइट है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या नन ऑफ दीज? ये हमें बताइएगा। राइट टू वोट, ठीक है। सो एंड इन केस ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बताना है आप लोगों को क्वेश्चन। सो द पर्पस ऑफ inclusion of directive principles of state policy in the Indian constitution is to establish, क्या पर्पस था? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हमें ये पता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किससे आती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ये भी लास्ट वाली ही स्लाइड में आप लोगों को बताया था मैंने। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फोर्थ पॉइंट ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आती है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत हो गया, ये गलत। सोशल डेमोक्रेसी ये हो सकता है, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक, डी। So the purpose of directive principle of state policy is to establish social and economic democracy. This will help India grow as a welfare state. ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनना है? हमें बनना है वेलफेयर स्टेट। Now again, next question. Now, the directive principles of state policy may be classified into which of the following parts of the for the sake of convenient study. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को हम लोग किस में क्लासिफाई कर सकते हैं स्टडी करने के लिए? तो सोशलिस्टिक, लिबरल एंड इंडिविजुअल, गांधीयन, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सर्टेनली क्लासिफाई कंटेन The Constitution does not contain any classification of directive principles. However, on the basis of its content and direction, they can be classified into three broad categories named as socialist, Gandhian, and liberal intellectual. Now, next question: which one of the following is not? Again, देखना भैया, एक चीज याद रखना हमेशा, वो ये याद रखना है कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जहां ये आ जाए ना, इस पे एकदम अलर्ट हो जाना, इस पर स्पेशल फोकस देना है। बहुत लोगों के क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं कि वो नॉट ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक, और वो इसी में 15 मिनट उनका इसी चारों ऑप्शन में चला जाएगा केवल एक नॉट ना पढ़ने से, क्योंकि वो इस सब पे रिसर्च करेंगे, सोचेंगे, और वो नॉट नहीं पढ़े हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी? क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ये तो सब जानते हैं कि भाई वेलफेयर स्टेट को बनाने की बात की जा रही, ठीक है, पहला होगा। टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, भाई होनी चाहिए, जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, ठीक। टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, कि एक रिलीजियस स्टेट बना दे, ठीक है, क्या ये होना चाहिए? तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात। टू इस्टेब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, तो हाँ सेक्युलर होना चाहिए। तो टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, ठीक। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, सी। अब ये सब क्या है, ये आप लोग स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। Consider the following statements regarding the directive principles of state policy. First, these principles spell out the social economic democracy in the country. हाँ भैया ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो गया कि हाँ
सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज द प्रोविजन contained in the principles are not enforceable by any court. बिल्कुल, so answer will be both 1 and 2 C. ठीक, the directive principles of state policy are directives to the government to implement them for establishing a social and economic democracy in the country. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. ठीक है, किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्हें इन्फोर्स लीगली नहीं किया जा सकता है। These principles have been stated as fundamental in the governance of country. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। कि with reference to the provisions contained in part 4, चौथे पार्ट में कौन कौन सा किसका प्रोविजन है? डीपीएसपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक, अब वो ये नहीं बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द डीपीएसपी, ये नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में। तो विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, दे शैल बी enforced by the they shall be enforceable by the courts, कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो कोर्ट्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स कर सकती हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत, तो ए चला गया, सी चला गया। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल और बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ ये ठीक है, दूसरा सही है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है कि जो जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टेट जो भी लॉ बनाएगी वो उससे प्रभावित होकर के बनाएगी। द स्टेट व्हाटएवर लॉज which state is going to make should be influenced by the DPSP। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या क्या? 2 and 3, यानी डी। ठीक, ये पढ़ लीजिए ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, इसमें यहां पे होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है ये मुझे। यहां पे आप लोग एक मार्क करिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, ये ध्यान रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच पार्ट? तो वेलफेयर स्टेट की बात कहां कहां हुई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फोर्थ शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो उसी का क्वेश्चन भी होगा, तो ए ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड in the constitution part 4 DPSP described in article 36 to 51 of the constitution। ठीक है। The idea of India as a welfare state is found in, welfare state की आइडिया कहां पे मिलती है हमें? पक्की बात है, preamble of the constitution, fundamental duties, directive principles of the state policy। ठीक है, DPSP में पाई जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं मिलती है। क्या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है। वी वांट टू डेवलप इंडिया एज अ सोशलिस्ट, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये याद है ना लास्ट क्लास का? तो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये है, तो प्रीएम्बल ए, प्रीएम्बल में भी है वेलफेयर स्टेट की बात और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, तो ऑप्शन होगा इसका डी। ए को हटाना है, सी को हटाना है और डी को ठोक देना है, ये हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी। Consider the following statement with reference to the Constitution of India and the directive principles of the state policy constitute limitations upon। कि अगर if we are talking about the DPSP,
देन डीपीएसपी किसके ऊपर लिमिट लगाता है, किसके फंक्शंस पे लिमिट लगाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लेजिस्लेटिव फंक्शन, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन में लिमिट लगाने का काम डीपीएसपी का नहीं है। लिमिट लगाने का काम है किसका? लिमिट लगाने का काम है जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट लिमिट करती है, पर डीपीएसपी तो कि ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ डीपीएसपी नहीं करता है। तो डीपीएसपी ना ही लेजिस्लेटिव फंक्शन पे कोई रोक लगाता है या लिमिट लगाता है, ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, सो नाउ नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के संविधान से नकल मारी गई है? तो ये तो बच्चा भी बता देगा, आयरलैंड से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन ये हुआ। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत? पंचायत कौन सा आर्टिकल बताता है कि स्टेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए? ये आपको मैंने बताया था कि 40 तो याद रहना चाहिए। ठीक है ना? तो आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजिंग द विलेज पंचायत। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 40 ये है, उसके अंडर में विलेज पंचायत होना चाहिए। आर्टिकल इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड endow them with necessary powers and authority to enable them to function as unit itself। यानी कि this was a type of decentralization of power। तो decentral, अब suppose that if question comes, then which article of the DPSP talks about the decentralization of power? So article 40, because it is talking about the organization of what? Village panchayat। ठीक है, now article 33 under right to constitutional remedies, fundamental right है, power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application and forces etc। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है कि गौ हत्या पर रोक लगाना चाहिए। आर्टिकल 48 says that to prohibit, अब देखिए वही है, डीपीएसपी एक सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन है आर्टिकल 48 में? कि टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। मतलब हमें गाय बछड़ों की स्लॉटर को रोकना चाहिए एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। साथ ही साथ ऐसे काम करने चाहिए कि उनकी ब्रीड्स, जो आने वाली नस्लें हों, वो और ज्यादा अच्छी हो। तो इस प्रकार का काम करना चाहिए। आर्टिकल 50 अगेन, तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से सेपरेशन होना चाहिए। सो ये हमारा आज का लेक्चर जो था वो था रिलेटेड टू योर दिस डीपीएसपी। इफ यू वांट टू एनरोल इन द फुल फ्लेज्ड course of polity, then you can contact our team. They will guide you accordingly. Thanks for joining Pariksha Idea.